بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں دبئی میں وزٹ کے لیے گئی ہوئی تھی اور وہاں ایک ٹیکسی والا مجھے پسند آ گیا۔ میں اس کے ساتھ پورا دبئی گھومنا چاہتی تھی۔ کافی دن جب میں نے گھوم لیا تو ٹیکسی ڈرائیور ایک نظر اٹھا کر بھی میری طرف نہ دیکھتا۔ ایک دن کہنے لگا، میڈم آپ کہیں تو آج آپ کو ایسی جگہ لے جاتا ہوں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ میں نے کہا لے جاؤ۔ پھر وہ مجھے ایسی جگہ لے گیا جہاں سنسان تھا، اور پھر وہاں میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ میرا نام روزینہ ہے۔ مجھے دبئی دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میں ہر وقت دبئی کی ڈاکیومنٹری دیکھتی رہتی تھی۔ کئی بار میں نے ابو سے کہا کہ مجھے پڑھنے کے لیے دبئی بھیج دیں، مگر ابو نہ مانے۔ اس وقت میری عمر تقریباً 23 سال تھی۔ میں خوبصورت، جوان اور ذہین تھی۔ خاندان میں دور دور تک میرا کوئی ثانی نہیں تھا۔ میری تعلیم BSc تھی۔ ایک دن میں اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی، کسی بات میں مصروف تھی، تو میری دوست مجھے کہنے لگی کہ میں نے MA کرنے کے لیے 2 سے 3 ممالک میں اپلائی کیا ہے۔ دیکھو اب میرا نام کس یونیورسٹی کی لسٹ میں آتا ہے۔ میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ مجھے بھی اپلائی کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے میرا نام بھی کسی یونیورسٹی میں آ جائے، میں اسکالرشپ پر چلی جاؤں، اس طرح سے اپنا خواب پورا کر سکوں۔ لیکن مجھے بس ڈر لگتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں اپلائی کر دوں اور میرا نام بھی نہ آئے۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ تم کس یونیورسٹی سے اپلائی کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ میں دبئی، انگلینڈ اور اٹلی میں اپلائی کر رہی ہوں۔ مجھے ابو نے اجازت دے دی ہے۔ وہ کہتے ہیں تم اپنی انجینئرنگ کی ڈگری باہر کے ملک سے ہی حاصل کرنا، کیونکہ پاکستان میں تو پڑھائی کی قدر و قیمت ہے ہی نہیں۔ مجھے اس کے ابو کی سوچ بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ میں ساری رات گھر آ کر اس کے متعلق سوچتی رہی اور دل میں خیال آیا کہ میں بھی اپلائی کر دیتی ہوں۔ میرے نمبر تو اس سے بھی زیادہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ میرا نام بھی نکل آئے اور میں بھی باہر جا سکوں۔ اس دن میرے سارے گھر والے کسی کازن کی شادی پر گئے ہوئے تھے۔ مجھے بھی سب نے شادی پر جانے کا کہا، لیکن میں نے شادی پر جانے سے منع کر دیا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ شادی پر سب رشتے کے متعلق بات کریں گے، اس کی شادی کب کر رہے ہو، کس کے ساتھ کر رہے ہو، اور یہ ایسا موضوع ہے جس پر میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، مجھے اپنے خواب پورے کرنے تھے۔ اس رات میں اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گئی اور دنیا بھر کی یونیورسٹیز کے متعلق معلومات اکٹھی کرنے لگی۔ صبح میں نے تقریباً 10 سے 12 یونیورسٹیز کے متعلق معلومات حاصل کر لی۔ اب میں نے نیت کر لی تھی کہ مجھے ہر طرح سے ابو کو منانا ہے۔ اگر میں ان کو نہ منا سکی تو پھر بھی میں چھپ کر اپلائی کر دوں گی۔ جب میرا یونیورسٹی لسٹ میں نام آ جائے گا تب ابو کو منا لوں گی، ہو سکتا ہے وہ میری کامیابی دیکھ کر خوش ہو جائیں اور خود ہی مجھے اجازت بھی دے دیں۔ 2 دن میں نے سوچ بچار میں گزار دیے۔ تیسرے دن میں نے اللہ کا نام لیا اور 3 سے 4 ممالک کی یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے اپلائی کر دیا، جن میں انگلینڈ، دبئی اور امریکہ شامل تھا۔ اپلائی کر کے تقریباً اس بات کو میں بھول چکی تھی۔ مجھے لگتا تھا میرا نام نہیں آئے گا، کیونکہ میری اتنی اچھی قسمت کہاں تھی۔ لیکن ابھی 1 ماہ گزرا تھا کہ میری دوست میرے گھر آئی، کہنے لگی کہ میرا نام آ گیا ہے۔ وہ بہت خوش تھی، کہنے لگی میں 15 دن کے بعد انگلینڈ پڑھنے کے لیے جا رہی ہوں۔ مجھے یہ خبر سن کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ مجھے اپنا بھی یاد آیا کہ اپلائی تو میں نے بھی کیا ہے، مجھے ابھی تک کسی یونیورسٹی کی طرف سے میل نہیں آئی۔ اس رات میں بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ گھر میں 2 سے 3 رشتے بھی آ چکے تھے اور اماں جلد از جلد میرے ہاتھ پیلے کر کے میری شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں ساری رات اپنے رشتے کے متعلق سوچتی رہی کہ مجھے ابھی یونیورسٹی جانا ہے، مجھے ابھی پڑھنا ہے، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی ہے۔ آدھی رات کو جب مجھے نیند نہیں آئی تو میں نے اٹھ کر اپنے لیپ ٹاپ لے کر اسے کھولا اور اس پر کچھ ویب سائٹ پر دیکھنے لگی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنی ای میل چیک کروں، ہو سکتا ہے مجھے کوئی میل یونیورسٹی کی طرف سے آ چکی ہو۔ ابھی میں نے میل باکس کھولی ہی تھی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ دبئی کی برٹش یونیورسٹی کی طرف سے میل آئی تھی اور وہ لوگ مجھے اسکالرشپ پر اپنی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کی آفر کر رہے تھے۔ یہ خبر پڑھ کر میں اپنی خوشی میں قابو نہ رکھ سکی اور میں خوشی سے سارے کمرے میں جھومنے لگی اور اس بات کو بالکل فراموش کر چکی تھی کہ ابا کو کیسے منانا ہے۔ ابو کو منانا مشکل مرحلہ تھا۔ میں نے تہجد کی نماز ادا کی اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میری مدد کرنا، میں اپنے ابو کو منا سکوں۔ اگلے دن ابو اکیلے تھے۔ میں خاموشی سے ان کے قریب جا کر بیٹھ گئی، غور سے ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی کہ کیا مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا پھر خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ ابو اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔ وہ مجھے یوں دیکھ کر گویا ہوئے کہ کیا مسئلہ ہے۔
इस तरह क्यों परेशान हो? कोई बात करनी है तो मेरा बेटा तुम मुझसे बात कर सकती हो। अब्बा मैं तो आपकी इकलौती बेटी हूँ कि आपके दिल में ये ख्याल नहीं आता कि मुझे अपनी बेटी को आला तालीम दिलवानी चाहिए और उसे पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना चाहिए। तो मुझसे कहने लगे बेटा मैं तो चाहता हूँ कि तुम आगे पढ़े लिखो, अपना मुस्तकबिल बनाओ, मगर तुमने तो बीएससी के बाद खामोशी ही इख्तियार कर ली है। मैं तो समझा था कि तुमने आगे पढ़ना नहीं चाहती, इसलिए तुम पर कोई दबाव नहीं डाला। आजकल के दौर में औलाद को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ही पढ़ाना चाहिए। अगर हम उन पर ज़्यादा ज़बरदस्ती कोई चीज़ लागू करेंगे तो उनका अंजाम बहुत गलत होता है। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत ढारिस मिली। मैंने कहा कि मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ। तो कहने लगे क्यों नहीं बेटा, तुम मेरी बेटी हो, तुम मुझसे नहीं मांगोगी तो तुम्हें किससे मांगोगी, मैं तुम्हें दूंगा। मैंने बगैर किसी तमीज़ के कहा कि अब्बा मेरा दुबई में ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया है और वो लोग मुझे स्कॉलरशिप पर दुबई बुला रहे हैं। क्या मैं दुबई अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के लिए जा सकती हूँ? पाकिस्तान में डिग्री तो रद्दी के भाव है। अब्बू मेरी बात सुनकर थोड़ा परेशान हो गए। मुझे कहने लगे कि बेटा तुम अपने पाकिस्तान में रहकर भी तालीम हासिल कर सकती हो, दूसरे मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। तो मैंने उनसे कहा कि पाकिस्तान के हालात कौन से अच्छे हैं, यहाँ पर भी तो सब कुछ वैसा ही है, हमारे मुल्क का दिफा। तो वो अपने मुल्क का दिफा करने लगे कि पाकिस्तान जैसा भी है अपना मुल्क है। तुम एक काम करो कि तुम इस्लामाबाद में कायद आज़म यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लो, वो पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी में तुम पढ़कर कभी भी नाखुश नहीं होगी। लेकिन अब्बा यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे ऑफ़र मिली है तो क्यों मैं एक मौका अपने हाथ से जाने दूँ? आप प्लीज़ मुझे इजाज़त दे दें, मैं कभी आपका नाम ख़राब नहीं करूँगी, आपको अपनी बेटी पर हमेशा फ़ख्र रहेगा। मगर अब्बू शायद मुझे उस वक्त इजाज़त देने के मूड में नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम मज़ीद इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, तुम कायद आज़म यूनिवर्सिटी कल चली जाओ, तुम्हें मुकम्मल सपोर्ट मिल जाएगी, लेकिन बाहर के मुल्क जाने की तुम्हें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, और ख़ास करके दुबई में तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे दुबई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब्बू हमेशा दुबई की मुखालफत करते थे। मैं इस बात से अक्सर चिढ़ जाती थी कि उन्हें दुबई से आखिर क्या मसला है कि वो दुबई को नापसंद करते हैं। उस दिन जब अम्मा घर लौटी तो उन्होंने कहा कि मैं रोज़ीना की जल्दी शादी करना चाहती हूँ ताकि मैं अपने फ़र्ज़ से सुबकदोश हो सकूँ। मैं इस बात को सुनकर गुस्से में आ गई। मैंने जाकर फ़ौरन अब्बू के सामने शर्त रख दी कि अगर आपने मेरी शादी करनी है तो फिर मुझे दुबई जाने की इजाज़त दे दें। आप मेरी मंगनी कर दें, मैं दुबई से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करके वापस आऊँगी, तब आप लोग मेरी शादी कर दीजिएगा। अगर आप मेरी बात मान लेंगे तो मैं आपका ये रिश्ता कबूल कर लूँगी, लेकिन अगर आप लोग मुझे पढ़ने के लिए इजाज़त नहीं देंगे तो भूल जाए मैं अभी शादी करूँगी। ये बात सुनकर अब्बू सोच में पड़ गए थे। 2 दिन बाद मैंने अम्मी अब्बू से कोई बात नहीं की। अम्मी ने मुझे बुलाने की कोशिश करती तो मैं वहाँ से उठकर चली जाती। मैं जानती थी वो ज़्यादा देर मुझसे नाराज़ नहीं रह सकती, जल्द ही मुझे मनाने के लिए कोई ना कोई ऐसा कदम उठाएंगे जो यकीनन मेरे हक़ में होगा। फिर ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन अब्बू ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगे कि औलाद माँ बाप को कितना मजबूर कर देती है। मैं नहीं चाहता था कि तुम दूसरे मुल्क में जाओ, और फिर दुबई तो मुझे शुरू से ही नापसंद है, मगर तुमने बेटा हमें मजबूर कर दिया है कि हम तुम्हें पढ़ने के लिए दुबई भेज दें। लेकिन अगर एक बार तुम हमारी बात मान लो तो तुम किसी और यूनिवर्सिटी में किसी और मुल्क में अप्लाई करो। मैं नहीं चाहता कि तुम दुबई जाओ। मगर अब्बा मुझे सिर्फ ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में ही मौका मिला है और किसी यूनिवर्सिटी में मेरा नाम नहीं आया। अब्बा शायद मेरी बात को समझते थे, इसलिए उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। मेरे जाने का सुनकर अम्मी परेशान हो गई। वो मुझे नहीं जाने देना चाहती थी। उनको लगता था कि अब वो घर में अकेली रह जाएंगी और वो मुझे हमेशा के लिए खो देंगी। मैं उनकी वजह नहीं समझ पा रही थी कि वो मुझे क्यों जाने से रोक रही हैं। वो मुझे कहती थी कि मत जाओ, अगर तुम जाओगी तो मर जाओगी और कभी तुम वापस लौट कर नहीं आओगी। मैंने अम्मा को बहुत समझाया, अम्मा फ़िक्र ना करें, मैं आपको फ़ोन क्या करूँगी और कभी भी आपको ऐसा मौका नहीं आने दूँगी जिससे आपकी तरबियत पर हर्फ आए। 2 दिन के बाद मेरी दुबई रवानगी हो गई। मैं जानती थी कि अम्मी और अब्बू खुश नहीं हैं, लेकिन मुझे अपने ख्वाब पूरे करने थे। मैं उनको छोड़कर दुबई की सरजमीन पर कदम रख चुकी थी। मैंने सबसे पहले दुबई में देखने का इरादा किया था, लेकिन एक तो यहाँ पर मेरी दोस्त भी ऑनलाइन थी। मैं उनको फ़ोन पर अपने दुबई आने के मुतालिक आगाही दे चुकी थी। यहाँ पर रहने का इंतज़ाम पहले ही अब्बू अपने किसी दोस्त के ज़रिए करवा चुके थे। मैं रहने के लिए अब्बू के इंतज़ाम करदा रिहाइश पर चली गई। 2 से 3 दिन मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के मामलात ख़त्म किए तो मुझे पता चला कि अभी मेरी क्लास शुरू होने में तकरीबन 20 से 25 दिन हैं। इससे पहले मेरा इरादा हुआ क्यों ना
इनसे फ़ायदा उठाया जाए, मैं पूरा दुबई घूम लूँ। इसी सिलसिले में मैंने अपनी दोस्त से बात की और कहा कि मुझे दुबई में किसी टैक्सी ड्राइवर को 20 से 25 दिन के लिए हायर कर दो, ताकि मैं आराम सुकून से जहाँ भी जाना चाहूँ चली जाया करूँ। मुझे ज़्यादातर जगहों के बारे में इल्म नहीं था। उसने मुझे कहा, ठीक है, 2 से 3 दिन में किसी काबिल यकीन टैक्सी वाले को देखकर तुम्हें बताता हूँ। तीसरे दिन के बाद मुझे दोस्त का फ़ोन आया और मुझे कहने लगा कि एक बंदा है और वो बंदा पाकिस्तानी है, लेकिन दुबई में आए हुए तकरीबन उसको 15 साल हो चुके हैं। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। कल वो तुम्हारे घर वक्त से पहुँच जाएगा, तुम तैयार रहना। तुम जहाँ कहोगी वो तुम्हें ले जाएगा और शाम को तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ देगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर मिल गया था। और हम पाकिस्तानी जितनी मर्ज़ी बोल्ड हो जाएं, लेकिन फिर भी अपने मुल्क के लोग जहाँ पर भी हमें नज़र आएँ, हमें उन पर बेतहाशा प्यार आता है। मेरा भी कुछ यही हाल था। दुबई में आए हुए तकरीबन 10 से 12 दिन गुजर चुके थे। मैं यहाँ की ज़्यादातर चीज़ों के बारे में नहीं जानती थी कि मैं घूमने फिरने का इरादा करके उसके बाद क्लासें लेना शुरू करना चाहती थी। फिर बिल्कुल भी किसी दूसरे काम के लिए मेरे पास वक्त नहीं बचना था। अगले दिन पूरे 9 बजे टैक्सी ड्राइवर मेरे घर के बाहर खड़ा था। मैं जल्दी से अपना पर्स उठाया और टैक्सी में बैठ गई। टैक्सी वाला मुझे रोज़ मेरे घर से लेता और शाम को घर पे छोड़ देता। इस दौरान मैंने एक बात नोट की कि वो आदमी मुझे आंख भरकर नहीं देखता था। उसने सर पर एक मखसूस रंग की टोपी पहनी होती थी और वह सारा सफ़र खामोशी से तय करता। मैं उसे बात करने की कोशिश करती तो मुझे कोई ख़ास जवाब ना देता। फिर मैंने भी सर झटक कर उससे बात करने की कोशिश छोड़ दी। मुझे उसके साथ तकरीबन आए हुए 6 से 7 दिन गुजर चुके थे। एक दिन मुझे कहने लगा कि मैडम, आपको एक चीज़ दिखाऊं जो आपने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी होगी। मैं ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी। मैंने जल्दी से कहा कि हाँ, क्यों नहीं, क्यों दुबई में कोई ख़ास चीज़ है जो मैं देखने से महरूम रह गई हूँ? तो वह कहने लगा, नहीं मैडम, बेफिक्र रहें, अगर आप कहें तो मैं आपको उस जगह पर ले जाऊँ। मैंने कहा ठीक है, तो मुझे उस जगह पर ले जाओ। उस आदमी ने टैक्सी की स्पीड कम कर दी। मैंने महसूस किया कि वो मुझसे बात करना चाहता है। मैंने कहा कि तुमने स्पीड कम क्यों कर दी? कहने लगा, आप डरे नहीं, आपको आपकी मंजिल पर पहुंचा दूंगा, आप मुझ पर एतमाद रखें। हम पाकिस्तानी लोगों की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। अपने मुल्क के लोग तो अपने ही होते हैं। इसे तकरीबन ड्राइव करते हुए 20 से 30 मिनट गुजर चुके थे कि अचानक उसने गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक दी। मैं देखकर बहुत डर गई थी। मुझे कहने लगा, मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप गाड़ी से बाहर आ सकती हैं ताकि मैं आपको आसानी से वो जगह पर ले जा सकूं। मैंने कहा, नहीं भाई, यहाँ पर तो कुछ भी मुझे नज़र नहीं आ रहा, शायद तुम मुझे गलत जगह पर ले आए हो। तो कहने लगा, नहीं मैडम, आप एक बार मेरे साथ आए तो सही। मैं उसकी बात मानकर गाड़ी से उतर आई। मैडम मेरे पीछे आती जाए। मैं अंदर से बहुत डरी थी। किसी आदमी के साथ इस तरह सुनसान जगहों पर जाना मेरे लिए मसला बन सकता था। 2 से 3 मिनट गुजरने के बाद वो एक खूबसूरत घर के बाहर आकर रुक गया। कहने लगा, मैडम, ये मेरा घर है, अगर आप बुरा ना मनाएं तो आप मेरे साथ मेरे घर में आ सकती हैं। मैंने कहा, अरे भाई, तुम पागल हो गए हो? मैंने तुम पर यकीन किया और तुम्हें कहा कि मुझे अपने साथ ले चलो, ये मुझे कहाँ ले आए हो? देखो, मैं पाकिस्तान से हूँ, मेरा यहाँ पर कोई नहीं है। मैं दुबई देखने का शौक़ पूरा करना चाहती थी। प्लीज़ तुम मुझे घर छोड़ाओ और कल से मुझे लेने मत आना। मैडम, आप मुझ पर यकीन रखें, मेरे घर में मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, आपके साथ ऐसा कुछ गलत नहीं करूँगा। मैंने डरते हुए उसके साथ उसके घर जाने का फ़ैसला कर लिया क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था और मुझे उसकी शक्ल से अंदाज़ा हो रहा था कि वो उस बात पर पक्का है कि वो मुझे घर लेकर जाएगा। उसने दरवाज़ा दस्तक दी। चंद ही सेकंड में खूबसूरत नौजवान औरत ने दरवाज़ा खोला। मैंने उस औरत को जल्दी से सलाम किया। वो देखने से मुझे पाकिस्तानी मालूम होती थी। मुझे हाथ से पकड़ कर अंदर ले आई। मैं बहुत ज़्यादा डर की वजह से कांप रही थी। उसने मुझे हॉल में बिठाया और अपनी बेटी को आवाज़ दी कि पानी लेकर आओ। वो आदमी सामने बैठा था। फिर वो ज़ारों के तार रोने लगा। मैं उसको यूँ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। जल्दी से मैं अपनी जगह से खड़ी हुई। भाई, क्या हो गया है? तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? तुम मुझे इस जगह पर क्यों लाए हो? और ऊपर से तुम ये क्या कर रहे हो? फिर उस आदमी ने मुझे ऐसा राज बताया कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो औरत और कोई नहीं बल्कि उस आदमी की बीवी थी और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा भाई था। मुझे खुद पर बीती हुई दास्तान सुनाने लगा। कहने लगा, मेरी बहन, आज से 30 साल पहले मैं स्कूल से अगवा हो गया था। वो लोग मुझे उठाकर दुबई ले आए। मुझे अपनी अम्मी अब्बू की बहुत याद आती थी, लेकिन मैंने कभी पलट कर देखने की कोशिश ही नहीं की। 3 साल तक उनकी हिरासत में रहा। 3 साल बाद अल्लाह ने रास्ता दिखाया कि मुझे वहाँ से भागने का मौका मिल गया। उसके बाद मैंने पाकिस्तान वापस जाना चाहा तो मुझे पता चला कि मेरे माँ बाप किसी हादसे में फौत हो गए हैं
और मेरी बहन रोजीना जिसे मैं छोड़ कर आया था वो भी उनके साथ मर गई है। ये खबर मुझ तक किसी ने झूठी पहुंचाई थी ताकि मैं कभी भी पाकिस्तान वापस न जा सकूं। फिर मैंने यहीं पर काम करना शुरू कर दिया और टैक्सी चलाना शुरू कर दी। ये मेरे दोस्त की बहन है। मेरे दोस्त को कैंसर था। उसने मुझसे कहा कि मेरी बहन की शादी नहीं हुई है, तुम मेरी बहन से शादी कर लो। अगर तुम मेरी बहन से शादी नहीं करोगे तो गैर मुल्क में मेरी बहन से पता नहीं लोग कैसा सलूक करेंगे। मैंने उससे शादी कर ली और मेरी 2 बेटियां हैं। मुझे ड्राइवर की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। वो उठकर अम्मी अब्बू की तस्वीर ले आया। कहने लगा, ये देखो अम्मी अब्बू की तस्वीर। अब मुझे पुरानी बातें याद करवा रहा था, रिश्तेदारों के नाम बता रहा था, जिससे मुझे यकीन हो गया कि ये मेरा भाई नहीं है तो ज़रूर जानने वाला है। मैं अपने भाई से मिलकर बहुत खुश थी। अगर ये मेरा भाई था तो खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। मैंने फ़ौरन घर में फ़ोन किया और कहा, अब्बू आप मुझे दुबई जाने से क्यों रोकते थे? क्योंकि मुझे अब समझ आ रही थी अब्बू मुझे दुबई जाने से क्यों रोकते थे। अब्बा को क्यों दुबई नापसंद था। अब्बा आपके लिए खुशखबरी है, लेकिन उससे पहले मुझे बताएं आप मुझे इस मुल्क से नफ़रत क्यों करते थे? आप मुझे क्यों यहाँ नहीं आने देना चाहते थे? अब्बू मुझे कहने लगे, बेटा पुरानी बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम ये सब छोड़ो, तुम बताओ कैसी हो। मैंने जब ज़िद की तो मुझे बताने लगे कि हमारा एक बेटा था, तुम्हारा भाई था, जिसको कुछ लोगों ने अगवा करके बेच दिया था। मैंने अपने कुछ दोस्तों के ज़रिए दुबई में अपने बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे ना मिला। मैंने कहा, अब्बू मैं आपको खुशखबरी सुनाऊं, ये देखें आपने अपनी बेटी को दुबई भेजा, मैंने आपके बेटे को ढूंढ निकाला है, ये देखें भाई। मैंने जल्दी से कैमरा भाई की तरफ कर दिया। भाई को देखकर वो बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने बेटे को पहचान लिया था। दोनों बाप बेटा घंटों एक दूसरे से बात करते रहे। भाई अपनी बहन को देखकर बहुत खुश थे। अब्बू मुझे कहने लगे, ना तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश समझो या कुछ भी समझो, तुम दुबई छोड़कर जल्दी से मेरे बेटे और पोती को लेकर अपने साथ पाकिस्तान वापस आ जाओ। मैं अब्बू को कोई जवाब नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मैं पहले से जान गई थी कि भाई ने बहुत दर्द बर्दाश्त किए हैं। अब्बू ने अपने बेटे को पहले से खो दिया है, तो मैं कभी भी इस तरह से जिद करके दुबई ना आती। मैंने वापसी की टिकट करवाई और हम लोग तकरीबन 4 से 5 दिन में वापस पाकिस्तान आ गए। अम्मी को हमने जाकर सरप्राइज़ दिया था तो वो बहुत खुश हो गई थी। अपने बेटे को देखकर वो बहुत खुश थी और अपनी बेटी पर फ़ख्र कर रही थी कि अगर उन्होंने अपनी बेटी को दुबई भेजा है तो मैंने उनके बेटे से उनको मिलवा दिया। मैं हैरान थी कि भाई ने मुझे कैसे पहचान लिया। वो मुझे कहने लगे कि जिस दोस्त ने मुझे तुम तक पहुंचाया था वो दोस्त तुम्हें जानता था, वही मुझे तुम्हारे बारे में खबरें देता था। जब उसे पता चला कि तुम दुबई जा रही हो तो उसने मुझे इत्तला दी और इस बात का मैंने फ़ायदा उठाते हुए तुम तक पहुंचना ही मुनासिब समझा। मैं भी हैरान थी कि भाई अगर आप सबको जानते तो फिर आप पहले क्यों पाकिस्तान नहीं आए। तो भाई कहने लगे कि मैं कभी भी वापस नहीं आ सकता था, क्योंकि दुबई के कुछ उसूल हैं और मुझ पर वहाँ 2 झूठे केसेस पड़े हैं। अगर मैं इस तरह पाकिस्तान वापस आ जाता तो वो लोग मेरी बीवी बच्चों को कभी ना छोड़ते। मैंने भाई से कहा कि जो कुछ भी हुआ आप इसे अपनी ज़िंदगी का माजी समझकर भूल जाएं, आप कभी पाकिस्तान से ना जाइएगा। हम सब बहुत खुश हैं। मैंने भी यहाँ पर अब्बा की खुशी से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था और इंजीनियरिंग मुकम्मल कर ली थी। अम्मा ने किसी जानने वाले के घर में रिश्ता तय कर दिया था। अब हम सब बहुत खुश थे। अल्लाह का शुक्र अदा करती थी मैं कि उसने भाई जैसी नेमत से मुझे वापस मिलवा दिया था। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सुनो ज़रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी फ़ौरन कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन पर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।